Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. We are discussing the physiology of pregnancy. Last time we talked about the hormonal factors in pregnancy and placental hormones and mostly the functions of placental hormone and the endocrine response of the mother. ये भी हमने देखा था कि maternal endocrine gland they secrete more during pregnancy because they are required, metabolism ज़्यादा होता है. And rest of the maternal response we are going to talk about the maternal response to pregnancy. But before that, one ayah from Holy Quran, Surah Ra'd, ayat number 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ये प्रेगनेंसी के मुतल्लिक आयत है. ट्रांसलेशन इसकी कि मादा अपने शिकम में जो कुछ रखती है. अल्लाह यालम, अल्लाह खूब जानता है. मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, जो किसी खातून ने उठाया हुआ है. वमा तगीदुल अरहाम वमा तज़दाद, और जो रहम में ज़्यादा हो रही है, ये कमी हो रही है, कमी बेशी अल्लाह बखूबी जानता है. पेट का घटना बढ़ना, ट्रांसलेशन ये की हुई है. और हर चीज़ उसके पास अंदाजे से है. वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, अल्लाह ने हर चीज़ का एक निज़ाम, एक कायदा, एक अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है. उसके मुताबिक वही हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रेगनेंसी में कब कौन सी हार्मोन कितनी सिक्रीट होगी, कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, अल्लाह ने उसका एक पूरा अंदाज़ा रखा हुआ है. वह कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, अल्लाह ने हर चीज़ उसके पास अंदाजे से है, प्रॉपर तरीके से तय करके रखी हुई है. वी आर टॉकिंग अबाउट, वो हमने हार्मोनल रिस्पॉन्स देखा ना, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन. इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत निज़ाम रखा हुआ है फॉर बैलेंस करने के लिए, सारा बैलेंस निज़ाम. तो अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ दे. So today we are going to talk about the maternal response of the mother to pregnancy. Increase size of the reproductive organs that is required. Uterine size का increase हमने पिछले lecture में भी देखा था. Increase size of the reproductive organ, uterus increases from 50 grams to 1100 grams. More than 1 kilogram. 1 किलो वजन उसका बढ़ता है. So the uterus increases from just 50 grams to 1100 grams, and that is required. Very big uterus. It is filling the whole of the abdomen toward the end of the pregnancy. And the breasts, they increase in size. We have talked about the effects of those placental estrogen as well as the ovarian estrogen and the breast development for the final preparation for the lactation. So the breast double in size. There is enlargement of the vagina and wider opening of the introitus, that is to be prepared for the delivery of the baby as well. So different changes in the general appearance may occur. आपने देखा वो pregnant lady की general appearance edematous होती है, चेहरे पे swelling हो जाती है. So different changes in the general appearance. Edema, वो किस वजह से है? Salt and water retention, because of the more secretion of cortisol, more secretion of aldosterone, more secretion of estrogen. All these steroids, they are causing the conservation of salt and water, more retention of salt and water. So there is some edema is quite common in most of the pregnant ladies. So salt and water retention, and that affects the general appearance of the lady as well. So there is development, there are chances that some ladies, they do develop acne because of the androgens. Acne, हमने testosterone के function में पढ़ा था. So the more secretion of androgens, those androgens are required to be converted into the placental estrogen and progesterone. So lot of androgens are present in the maternal circulation. They affect the maternal skin and face as well. And there is acne development, excessive androgenic hormones की वजह से है. And then rest of the effects of the masculine hormone, the androgenic hormone, excessive growth of the hair, masculine features may develop, excessive androgenic activity, hair growth on the face may occur.
एंड बिकॉज ऑफ द मोर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पिछले लेक्चर में हमने ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी वो भी, प्लस देयर इज द ग्रोथ हार्मोन लाइक हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेसेंटा, ह्यूमन कोरियानिक सोमेटोमेमोट्रोपिक हार्मोन, that also is growth hormone like. So there are acromegalic features, कुछ ना कुछ उसके भी फीचर्स उसमें आ सकते हैं मैटरनल लेडी में, प्रेग्नेंट लेडी में. So this is the response of the mother to pregnancy. और इसको कंटिन्यू करते हैं. वेट गेन, इंक्रीज साइज की बात तो कर ली थी. वेट गेन कितना होता है? एवरेज वेट गेन जो हम कहते हैं अबाउट 24 पाउंड्स वेट गेन एवरेज है. बाद लोगों में ज्यादा कम भी होता है. इतना एवरेज वेट गेन इज 24 पाउंड्स एक लेडी का वजन बढ़ सकता है. उसमें फीटस आमतौर पर 7-8 पाउंड्स का होता है. 7 पाउंड्स इज द फीटस. एमनियाटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन, उनको सबको मिला के 4 पाउंड्स उनका वजन हो सकता है. एंड द यूट्रस जो इंक्रीज इन साइज हुआ है वो 2 पाउंड्स 1 किलो के करीब अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा. सो देयर इज इंक्रीज साइज ऑफ द यूट्रस 2 पाउंड्स एंड इंक्रीज साइज ऑफ द ब्रेस्ट 2 पाउंड्स, ये हमने बात कर ली. एंड देयर साल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से जो वाटर एंड साल्ट की जो वजन इंक्रीज हुआ दैट इज अबाउट 9 पाउंड्स. सो दिस इज अबाउट 24 पाउंड्स, 9, 13 एंड 24 मंथ. There is increased appetite in mother because there is a lot of nutrients are being drained to supply these nutrients to fetus. तो mother appetite may increase. Mostly mother में भूख बढ़ सकती है because that is required because the fetus is utilizing these nutrients. So appetite may increase. And if it is not controlled, उसके मुताबिक अगर वो खाना खाने लग जाए, and some lady may gain weight as 75 pounds 3 times, 24 के बजाय 75 पाउंड, ट्रिपल वजन उसका बढ़ सकता है. तो बाद लेडी में इतना ज्यादा होता है तो खाना उनका ऐसे. सो वेट गेन, नॉर्मली एवरेज वेट गेन इज 24 पाउंड, लेकिन बढ़ भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. Metabolism, all the hormones have increased and they will affect the metabolism throughout the body. So there is all the hormones, they increase the metabolism. All the hormones, TSH and cortisol and growth hormone and other these estrogen and progesterone, all they increase the metabolism. So there is metabolic rate is increasing. 15% increase in the BMR, basal metabolic rate. 15% increase हो सकता है mother में. And that is more metabolism requires more energy, ATP utilization, so more energy expenditure is required. Those nutrients, appetite भी बढ़ रही है, appetite nutrients are being supplied, so hormones भी बढ़ रहे हैं, those nutrients are utilized and more energy provision and more energy expenditure is seen in mother as well. तो ये तो जनरल बातें हुई. अलग अलग सिस्टम की बातें कर ले. डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या होता है मदर को? अभी हमने कहा कि वो भूख तो बढ़ती है, खाना भी ज्यादा खा सकती है. Most of the weight gain and nutritional needs are in later part of the pregnancy. आपने पढ़ा होगा, बात कर लेते हैं. ये development of the fetus is gradually increased toward the end of the pregnancy. Last trimester में खूब development होती है fetus की, आपने embryology में पढ़ा होगा. So the most of the weight gain and nutritional needs are toward the end of the pregnancy. अब बेबी भी बड़ा हो गया, उसके nutritional need भी ज्यादा है, लेकिन उस वक्त तक all the GIT has been pushed to backward or against the diaphragm. तो खाना पीना उसका तो खराब हो जाता है toward the last part of the last trimester में. So the less absorption from the GIT in third trimester, उसकी वजह क्या है? Because all the GIT has been pushed against the diaphragm or toward the back. So सारा abdomen को तो यूट्रस ने भरा हुआ है, GIT के लिए जगह ही नहीं है. So the अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में होता क्या है कि देयर इज इंक्रीज एपेटाइट वगैरह है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द प्लेसेंटा एंड मैटरनल टिश्यू. मदर के फैटी टिश्यू में, मदर के प्रोटीन्स में और प्लेसेंटा में दीज न्यूट्रिएंट्स आर डिपॉजिटेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी. लेट पार्ट में जब उसका खाना पीना में भी कंप्रोमाइज हो बिकॉज ऑफ दिस, सारी जीआईटी हैज बीन पुश्ड, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही, तो दीज स्टोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा में हो या मदर के अपने न्यूट्रिएंट सोर्स हो, दे आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी. रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज इंक्रीज्ड. हमें पता है कि मदर के लिए भी ज्यादा चाहिए, उसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, वो भी चाहिए. मदर की भी अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी है, उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए. प्लस दीज ऑल दी न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी सप्लाइड टू द फीटस एज वेल. तो रिक्वायरमेंट तो सारे न्यूट्रिएंट्स हैज की बढ़ जाएगी. मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, एवरीथिंग हैज टू बी इंक्रीज. तो ये देने पड़ेंगे मदर को भी, बिकॉज मदर को भी जरूरत है, फीटस को भी जरूरत है. तो आयरन फॉर एग्जांपल, मदर को तो आयरन चाहिए, उसका भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है. एंड 375 मिलीग्राम फॉर द फीटल ब्लड. इतना आयरन तो ये एवरेज है. 375 milligram the blood iron is required for the fetal blood to develop. fetus का blood develop कर रहा है, वो higher iron इस्तेमाल, उसके RBCs बन रहे हैं, उसका hemoglobin बन रहा है. तो at least this 375 milligram of iron is required for the fetal blood. Plus 600 milligram for the maternal blood. मदर का अपना blood भी increase करता है. अगली स्लाइड में हम पहले भी जिक्र किया था हमने, blood volume has to increase. वो increase करता है, that has to supply oxygen to the fetus as well. And blood volume बढ़ता है and उसका ब्लड बढ़ता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. 600 मिलीग्राम फॉर द मदर. सो देयर इज प्रेगनेंसी के दौरान इतना आयरन एटलीस्ट उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा. अगर उसकी डाइट में कमी है तो दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, उसको पूरा करना पड़ेगा. कैल्शियम की रिक्वायरमेंट मदर के, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया, तो कैल्शियम हैज टू बी सप्लाइड टू द फीटस. फीटस की डेवलप कर रही है तो मदर के भी अपनी कैल्शियम चाहिए. एंड विटामिन डी भी चाहिए फॉर दिस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा हुआ है. सो दी रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ये भी, और विटामिन भी, विटामिन यहाँ सारे लिख दिए हैं, ऑल द विटामिन दे आर रिक्वायर्ड. प्लस दी कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड आयरन एटसेट्रा, ये सारी चीजें देयर इज मोर रिक्वायरमेंट, दे हैव टू बी सप्लाइड. और आखिर में सेंटेंस लिखा हुआ है, different deficiency syndrome may develop if the requirements are not fulfilled. अगर उस मदर को प्रॉपर प्रोटीन नहीं देंगे या फैट्स नहीं देंगे, विटामिन नहीं देंगे, तो उनकी डेफिशिएंसी जाहिर होगी. आयरन नहीं देंगे, शी विल बी एनीमिक, बेबी विल बी एनीमिक. सो कैल्शियम नहीं होगी तो उसका भी नुकसान, विटामिन डी नहीं होगा तो उसका इफेक्ट होगा. सो डिफरेंट डेफिशिएंसी सिंड्रोम मे डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ प्रॉपर. आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज को वी डू प्रिस्क्राइब, ऑल द डॉक्टर दे डू प्रिस्क्राइब विटामिन एज वेल एज कैल्शियम एंड द आयरन एटसेट्रा. और उनको कहा जाता है कि उनको अच्छी डाइट दें और गुड डाइट दें, मिल्क दें और अंडे दें और गुड डाइट, बैलेंस डाइट, उसको अच्छी डाइट देनी चाहिए. सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम का ये इफेक्ट हमने बात की. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इफेक्ट्स. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देयर इज इंक्रीज वॉल्यूम, 30% इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम. ये थोड़ा नहीं है, 30% इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम में अगर इट इज नॉर्मल, इतना ब्लड बढ़ेगा तो उसके लिए आयरन चाहिए, साल्ट एंड वाटर चाहिए. सो देयर इज इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एज वेल. कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस. ये इतना ब्लड वॉल्यूम होगा, दैट हैज टू बी पम्प्ड बाय द हार्ट. हार्ट ने पंप कर रहा है. कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस अप टू 27th 30 to 40% इंक्रीज करता है 27th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी तक. एंड रिटर्न टू ऑलमोस्ट नॉर्मल इन लास्ट 2 months. लास्ट 8 weeks में ये कार्डियक आउटपुट नॉर्मल की तरफ आ जाता है. पहले शुरू में बढ़ता है 27, अच्छा खासा बढ़ा, दैट इज 30% बढ़ने का मतलब है, 40% बढ़ने का मतलब है कि 5 लीटर है तो 4 लीटर तो बढ़ गया. तो या नहीं, 40% मीन के 2 लीटर तो बढ़ गया. तो 2 लीटर बढ़ेगा, 5 के बजाय 7 तो होगा, बट टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ये कम हो जाता है. हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा, देयर विल बी राइज इन द ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर हैज टू बी मॉनिटर्ड इन द प्रेग्नेंट लेडी. उसका ब्लड प्रेशर इसलिए बार बार मॉनिटर किया जाता है कि उसमें आगे हम देखेंगे टुवर्ड द एंड कि ये इट कैन बी डेंजरस, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया भी हो सकता है, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज हार्ट रेट. And the cardiovascular changes to meet the needs of the fetus. ये सारे काम क्यों हो रहा है? Increase blood volume, increase heart rate, increase blood pressure. This is required for to fulfill the requirements of the fetus as well.
ये द इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड वॉल्यूम को शो कर रहा है विद द एडवांसिंग एज ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के साथ ब्लड वॉल्यूम शुरू में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द लॉट ऑफ वो सारा आपको तरीका वही है कि देयर इज मोर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड हार्मोन एटसेट्रा और वेसोडाइलेटेशन एटसेट्रा, एकोमोडेशन, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ब्लड वॉल्यूम 20 वीक्स के बाद ये सो देयर इज इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम 36 में देयर इज द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो ब्लड दैट इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम इन लीटर्स में बढ़ रहा है, सॉरी। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इफेक्ट्स हमने देख लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इफेक्ट्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मदर, मेटाबॉलिज्म जब थ्रू आउट द बॉडी बढ़ चुका है, so that means more consumption of oxygen, more production of carbon dioxide mother में, fetus में भी ये सारी all the requirement of the fetus oxygen की और all the elimination of carbon dioxide, fetal carbon dioxide has to be eliminated through the maternal blood, so there is increased metabolism, increased oxygen consumption and carbon dioxide production, and this has to be eliminated through maternal lungs. फीटस के तो लंग्स काम भी नहीं कर रहे एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी इसी तरह है, so the carbon dioxide and progesterone increase the minute ventilation, this is important. कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा प्रोडक्शन जब भी होगी, यू नो द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दिस रेस्पिरेटरी सेंटर, दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एज वेल द डेप्थ ऑफ द इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इंक्रीजेज, जिसको हम कहते हैं मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज, 50% इंक्रीज। प्रोजेस्टेरॉन का भी इफेक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट इफ यू हैव स्टडीड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी उसमें देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड देयर इज हाइपर वेंटिलेशन वो कॉज करती है एंड मिनट वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड दिस 50% इंक्रीज इन द मिनट वेंटिलेशन इन दैट अकर्स, सो डिक्रीज एंड दिस इंक्रीज मिनट वेंटिलेशन, दिस प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट इतना ज्यादा ओवरराइड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन नॉन प्रेग्नेंट लेडीज की निस्बत प्रेग्नेंट लेडी में कम होता है, because it is very effectively eliminated out because of this effect, progesterone का effect on the pulmonary ventilation पे इतना अच्छा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा सा नॉन प्रेग्नेंट लेडी के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है एंड दिस इज रिक्वायर्ड। वो किस लिए रिक्वायर्ड है कि हमने probably we discussed the transport across the placenta, carbon dioxide की transport is because of the diffusion from the fetus into the maternal blood. Maternal blood का PCO2 is lower than the non-gravid female as well. So PCO2 compared to non-pregnant level, this is low and this is required. So diaphragm is raised, वो तो हमें पता है, this uterus has pushed all the contents against the diaphragm, so diaphragm is raised and diaphragm is the most important inspiratory muscle. जब diaphragm को movement restrict हो गई है तो इंस्पिरेशन कैसे होगी, इसके लिए तो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए जब डायफ्राम प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो फिर मिनट वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे, दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। प्रेग्नेंट लेडी में सांस का रेट बढ़ जाता है, तो देयर इज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड रेट इज इंक्रीज टू मीट द वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स, ऑक्सीजन की सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मिनट वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज इन द मदर, बिकॉज उसकी डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डायफ्राम, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम। सो दीज इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, अब मदर की बात कर रहे हैं हम, मैटरनल फिजियोलॉजी, मैटरनल रिस्पांस बात कर रहे हैं, हम फीटस की बात नहीं कर रहे। सो दी urinary system responsible for the excretion of the most of the metabolism of the metabolites of the fetus as well. मदर का भी मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया, BMR has increased, हमने देखा हुआ 15% increase, more production of the metabolites अगर BMR बढ़ चुका है तो, so the metabolite due to the increased metabolism they have to be eliminated through kidneys, carbon dioxide through lungs and rest of the metabolite through kidney. So the increased there is increased glomerular filtration rate, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर को याद रखें, दैट विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एज वेल, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल इफेक्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑन द ग्लोमेरुलर GFR जिसको कहते हैं, इंक्रीज GFR, यूरिन फॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड,
and there is increased reabsorption and salt and water, वो cortisol का effect और rest of the estrogen and progesterone are all the steroid का effect, salt and water retention kidney के जरिए से हो रही है, there is more salt and water retention and accumulation of extra 6 pounds of salt and water, वो 6 or 8 or 9 pounds हम शुरू में एक स्लाइड में देखा था, extra water and salt added, and this is because of the effects response of the maternal urinary system response to this pregnancy. amniotic fluid को जरा सा बात कर लें कि amniotic fluid is being collected in the amnion, जो जिसके fetus को surround कर रहा है. Normal volume of the amniotic fluid is about 500 ml to 1000 ml, 1 liter तक होता है, and maybe a few ml to several liter. बाद लोगों में ज़्यादा भी, हाइड्रोमनिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत कभी बहुत कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. वाटर टर्नओवर कितनी जल्दी बन रहा है, 3 hours. इतनी तेजी से fluid is being secreted, water is being secreted, it is very quickly being replaced. Turnover of the water total time is just 3 hours. इतने 3 घंटों में ये सारा fluid is drained back again और पूरा replace होता रहता है. Very quickly it is being formed and it is being reabsorbed. And कहाँ से electrolytes turnover, जो water का turnover तो बहुत तेज है, 3 hours में, और electrolyte का भी turnover 15 hours में, वो भी quite तेज है, रोजाना 2 दफा चेंज हो जाता है. So this amniotic fluid बनता कहाँ से है? It is secretion from the amniotic vessel, amniotic blood vessel से it is being secreted, वहाँ से secrete करता है. And renal excretion of the fetus के जो किडनी काम कर रहे हैं, उसका जो fluid urinate कर रहा है, that is added to the fluid. That is added to the amniotic fluid. जो baby fetus का जो urine है, that is added to, वो उसका part है amniotic fluid का. Absorption, ये बनना कहाँ से हुए? Secretion from the amniotic vessels and urinary excretion of the fetus. And absorption, drainage हो रही है, drainage, that is amniotic blood vessel में drain होता है, और fetus पीता है इसको, और उसके GIT में absorb होता है. And absorption fetal GIT में भी absorb होता है, mostly blood vessel में absorb होता है, और fetus भी absorb करता है इसको. तो ये तो हो गया नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ द मदर टू प्रेगनेंसी. कभी कभी इस रेस्पॉन्स में एबनॉर्मल रेस्पॉन्स भी, इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स हम बात कर लें. एबनॉर्मल रेस्पॉन्स कभी कभी होता है to this pregnancy, and we discussed toxemia of the pregnancy, toxic effect of the pregnancy आप कह लें, toxemia of the pregnancy, toxic effect of the pregnancy. उसमें पहला है pre-eclampsia. This is toxemia of the pregnancy. This is again the response of the mother to pregnancy. Abnormal response है. That is, उस किस फॉर्म में होता है? प्री एक्लेम्सिया में ब्लड प्रेशर हमने कहा, जैसे नॉर्मल इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट कॉमन, बट वेरी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंड दिस इसमें देयर इज लॉस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन. दिस इज एबनॉर्मल, टोटली एबनॉर्मल. Abnormal response. Albuminuria, lot of protein is lost in the urine. पहले ही प्रोटीन उसको ज्यादा जरूरत है, जब लॉस होगा यूरिन में, she will be suffering from hypoproteinemia, and hypoproteinemia के affect the edema. किसी में भी जब भी हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, osmotic pressure of the extra blood is reduced and this causes more edema, fluid filtration बढ़ जाती है, and this causes edema. So this hypertension, albuminuria and edema, ये तीनों चीजें मिलकर this is known abnormal है तीनों, and this is known as the preeclampsia. Weight भी gain होगा because fluid is being retained, edema हो रहा है तो weight gain तो ज्यादा होगा इसमें. And इसका cause क्या है? There is vascular spasm in many parts of the body. Vascular spasm, blood vessel, they constricted and they remain constricted, spasm में होते हैं. This is something wrong with this. ये खराबी है. This causes reduced blood flow many areas. Blood flow reduced, and this causes renal blood flow reduction. जब होगी तो GFR will be reduced. अभी हम पिछली स्लाइडों में renal effect देखें, there is increased GFR. अगर ये abnormal response होगा because of the vascular spasm, kidney के vascular spasm होगा, glomerular vessel, if they go into the spasm, there is reduction in the GFR. GFR जब reduce होगा, there will be further edema.
एडिमा का कहा तो एक एल्ब्यूमिन यूरिया का है, लॉस ऑफ प्रोटीन हाइपोप्रोटीनीमिया है, एंड दिस इज अगेन द अदर कॉज दैट इज, ये तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, बट वास्कुलर रिस्पांस रिड्यूसेस द जीएफआर, जब जीएफआर कम होगा इट विल कॉज द रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड फर्दर एडिमा भी लगकर। कॉज क्या है इसका? कॉज पहली बात तो ये है कि अननोन है, बस मैटरनल रिस्पांस है, कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग, वी डोंट, कुछ बातें जो हमें पता है हम बात कर सकते हैं। मे बी इट इज एन ऑटो इम्यूनिटी, ये टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को इम्यून रिस्पॉन्स है, ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी मदर उसका ऑटो इम्यून सिस्टम इज नॉट टॉलरेटिंग दिस प्रेगनेंसी, so there is production of some sort of antibodies or autoimmunity which are causing this hypertension and which are causing this protein urea, kidney के glomerular filtration membrane को खराब कर दिया, something wrong, protein is being lost, so these autoimmunity, this is autoimmunity which is causing all this, or allergy to pregnancy, वो भी एक किस्म का response of the immune system है to this, so allergy to pregnancy or autoimmunity to pregnancy and usually associated with the insufficient blood flow to the placenta, बाकी जगह भी blood flow कम है, placenta का भी blood flow कम होगा, and the insufficient blood flow to the placenta it will cause, and the probably some cytokines are produced, tumor necrotic factor alpha or interleukin 6, they are being produced and this immune response somewhere कहीं से ये produce हो रहे हैं which are causing this, so cause of this is पहली बात तो ये है कि अननोन है, जो कुछ बातें जो थ्योरी है अभी प्रॉपर डेवलपमेंट रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड कुछ बातें पता हैं, तो दिस इज सो दिस वाज प्री एक्लेम्सिया। अब आ जाएं इसकी अगली स्टेज, प्री को कन्वर्ट कर दिया इनटू प्री को हटा दी, एक्लेम्सिया, दिस इज फाइनल स्टेज ऑफ दिस प्री एक्लेम्सिया को कंट्रोल ना करे, यूजुअली अकर शॉर्टली बिफोर लेबर, अगर प्री एक्लेम्सिया को ये आपने देखा होगा, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड के प्रेग्नेंट लेडी शुड रेगुलरली विजिट द मैटरनिटी होम, उसको प्रॉपर एग्जामिन किया जाए कि व्हाट इज हैपनिंग टू ऑल दिस प्री एक्लेम्सिया, तो इफ प्री एक्लेम्सिया इज देयर, क्वाइट कॉमन, इतना अनकॉमन नहीं है, बहुत सी लेडीज को होता है, बट दे कैन बी मैनेज, अर्ली डायग्नोज हो गया इट कैन बी मैनेज, उसको मैनेज कर, लेकिन अगर ये प्रॉपर मैनेज ना हो इट मे गो इनटू दिस एक्लेम्सिया, यूजुअली अकर शॉर्टली बिफोर लेबर, ये टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया, वो सारे फीचर्स बढ़ा दे, कौन कौन से, हाइपरटेंशन, एल्ब्यूमिन यूरिया एंड एडिमा, वही तीन बड़े फीचर थे, उन तीनों को एक्सट्रीम डिग्री तक बढ़ा दें, प्लस ऐड कर दें एक्सट्रीम वास्कुलर स्पाज्म भी होगा एंड कन्वल्शन शुरू होते हैं, उसको झटके लगते हैं, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है इसका हाइपरटेंशन का या डिक्रीज ब्लड फ्लो का टू द नर्वस सिस्टम एज वेल, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा, ऑल दैट विल कॉज द कन्वल्शन इन दैट एंड कॉमा भी हो सकता है, शी कैन गो इनटू कॉमा एंड रीनल फेलियर भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द किडनीज, वो हमने बात की हुई है, एंड द हेपेटिक फेलियर, बाकी टिश्यूज को भी ब्लड फ्लो कम है, किडनी को भी कम है, हेपेटिक फेलियर एंड मोर्टेलिटी रेट इन एक्लेम्सिया इज वेरी हाई, अगर एक औरत का प्री एक्लेम्सिया कन्वर्ट हो गया इनटू एक्लेम्सिया दिस इज वेरी डेंजरस, सो मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई, इसलिए इसको प्रॉपर मैनेज अर्ली पार्ट में ऑफ द प्रेगनेंसी में करना होता है, और अगर ये किसी को हो जाए तो रैपिडली एक्टिंग वेजोडायलेटर्स इस हाइपरटेंशन को कम करने के लिए वेजोडायलेटर देते हैं, दो काम के लिए, एक तो हाइपरटेंशन कम हो एंड ब्लड फ्लो टू ऑल द टिश्यूज, रीनल को और लिवर को और प्लेसेंटा को और ब्रेन को, हर जगह को ब्लड फ्लो हैज टू बी रिस्टोर्ड बाय द रैपिडली एक्टिंग वेजोडायलेटर, ब्लड प्रेशर को भी कम करना है और ब्लड फ्लो को भी बहाल करना है और उसको सेडेट भी करना है, इस कन्वर्जन को रोकने के लिए सेडेशन देनी पड़ती है एंड काम ये करना पड़ता है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी जिस स्टेज पर भी है, अगर एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो गया प्रेगनेंसी हैज टू बी टर्मिनेटेड एंड लकीली होता है ये टुवर्ड द एंड ऑफ द लेबर होता है, फुल टर्म होता है, ऑलमोस्ट फुल टर्म होता है या उसको सर्वाइवल, सो इट हैज टू बी टर्मिनेटेड, उसको आमतौर पर सिजेरियन करके उसको रिमूव करें या उसको इंड्यूस करके टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इसको करना पड़ता है, and that's the response of the mother to pregnancy, और next time inshallah we will talk about, हम अगली स्टेज पे जाएंगे
प्रेगनेंसी हो गई, नाउ डिलीवरी को, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी और पार्चुरेशन, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन उसकी शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला. होप यू आर फॉलोइंग मी. इफ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम, सम क्वेश्चन, सम क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन. और फिर वही रिक्वेस्ट के इसको प्लीज़ डू शेयर दिस टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी आपको कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आसानी से मिलती रहें. Hope to see you next time inshallah ta'ala, and thank you very much.